relationship. There is a dependence on our exports in these Middle East countries, and we are trying to see that even in these difficult circumstances, whatever exports we are able to do, we are trying to support that also, so that whatever logistics movement take place in this region, we are able to send exports as much as possible. So what I'll do is I'll ask the DGFT to explain the contours of the scheme, make a PowerPoint presentation to explain the work being done both via the IMG and also the scheme that is being announced today. And after that, we'll be open to take questions from your side. Thank you very much. Thank you, sir. Sir, as you rightly highlighted, there is a challenge primarily posed with respect to trade-related distress, and government, as per the direction of Honorable Minister and under the overall guidance given at your level, we had initiated the action, sir. First, we would like to highlight with respect to the Interministerial Working Group on Supply Chains Resilience, sir. As we are all aware, sir, Persian Gulf ports geography and Strait of Hormuz, they had created certain challenges, primarily Hormuz being the exit corridor for Gulf cargo and energy flows. Similarly, Jabal Ali, Hamad, Bandar Abbas and Fujairah area, they were disrupted, sir. And parallelly, sir, it was also impacting the Europe and US bound cargo, primarily because of the long rerouting which might be required, sir. So there were challenges related with Hormuz transit which was suspended. Similarly, flights also from Middle East, either they were suspended or heavily curtailed, sir. And the issues related with diversion is what the trade had to sort of pass through, sir. This was a dual shock because air cargo भी effect हुआ, sir, और maritime cargo भी effect हुआ, जिससे exporters had to pass through certain challenges, and there were challenges related with sharp increase in the logistic cost due to war risk premiums and emergency surcharges. Similarly, there were challenges related with cargo accumulation at ports and airports, with perishable and refrigerated cargo being most affected. Then MSME challenges primarily, sir, with respect to the working capital stress and the limited ability to pass on the cost increases, sir. As directed by government, an interministerial group was formed, and this interministerial group started working from 3rd of March onwards, and every day 10 a.m. The interministerial group meets and reviews and coordinate with not only the industry but also the coordinating ministries. इस इंटरमिनिस्ट्रियल ग्रुप में सर डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स के साथ साथ जितने एसोसिएटेड मंत्रालय थे, जैसे कि DPIIT, मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, पोर्ट्स एंड शिपिंग, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, CBIC ऑफिसर्स, RBI, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स और रेलवे के ऑफिसर्स को जोड़ के हमने इसमें कार्य किया, सर. और बेस्ड ऑन इवॉल्विंग नीड, बेस्ड ऑन द डिस्कशन जो कि हमारा 10 बजे इस इंटरमिनिस्ट्रियल ग्रुप में डेली होता है, सर, उसमें इश्यूज को आइडेंटिफाई किया जाता है, कोऑर्डिनेटिंग मिनिस्ट्री से रिक्वेस्ट की जाती है और इंश्योर किया जाता है कि होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच से हम उनको रिक्वायर्ड सर्विसेज प्रोवाइड कर सके, सर. जस्ट टू गिव ए स्नैपशॉट ऑफ व्हाट हैज बीन द challenges which we noted and what are the actions we have taken so far as part of this interministerial group, sir. तो जैसे कि सर चैलेंजेस देखे गए थे इन टर्म्स ऑफ बैक टू टाउन मूवमेंट ऑफ कार्गो, उसके प्रोसीजर से रिलेटेड, सर. इसी तरह से कस्टम क्लियरेंस एंड फैसिलिटेशन कमेटी से कैसे कोऑर्डिनेट किया जाए और साथ ही ट्रांसशिपमेंट का प्रोसीजर को कैसे यूनिफॉर्म किया जाए, उससे रिलेटेड जब चैलेंजेस आए तो वी वुड लाइक टू ब्रीफ दी फ्रेंड्स फ्रॉम मीडिया की बैक टू टाउन पब्लिक नोटिस JNPT पोर्ट से इशू किया गया, साथ ही उसके बाद मुंद्रा और कांडला पोर्ट से भी वैसे नोटिस इशू किए गए. और कस्टम क्लियरेंस एंड फैसिलिटेशन कमेटी जो कि फील्ड लेवल हमारी फॉर्मेशन से, उन्होंने रेगुलर मीटिंग करते हुए जो हमारे एक्सपोर्टर्स को कोई भी चैलेंज उसको सपोर्ट कर रही हैं, सर. सर्कुलर ऑन रिटर्न कार्गो जो कि हॉर्मुज से लौट के आ रहा है, चाहे वो ट्रांसशिपमेंट हो या SEZ से रिलेटेड हो या डोमेस्टिक टैरिफ एरिया से हो, उससे रिलेटेड गाइडलाइंस इश्यू की गई. और साथ ही सर इसके साथ जो हमारी SOP थी, इवन मंत्रालय, शिपिंग मंत्रालय के लेवल पर भी एक डिटेल्ड SOP, एक यूनिफॉर्म प्रोसीजर के रूप में स्टोरेज और पेरिशेबल आइटम से रिलेटेड इशू की गई. डायरेक्टर जनरल ऑफ शिपिंग ने प्राइस ट्रांसपेरेंसी रिलेटेड डायरेक्शंस को भी इशू किया, सर. और JNP ने वेवर किया और साथ ही कांडला पोर्ट पर भी स्टोरेज ड्वेल चार्जेस और रेफर चार्जेस को उनको वेवर किया गया ताकि हम अपने जो रिटर्न कार्गो है उसको सपोर्ट कर सकें, सर. इसी के साथ ही जैसे कि इंडस्ट्री स्पेसिफिक कोई चैलेंज आता है
तो उस चैलेंज को कैसे एनकाउंटर किया जाए, उसके लिए भी यह इंटर मिनिस्ट्रियल ग्रुप कार्य कर रहा है सर। जैसे कि अमूल इंडस्ट्री साथ में कोरफाकन और ओमान से कोऑर्डिनेट करते हुए उनको हम कैसे सपोर्ट कर सकते हैं, यह एक डिस्कशन अभी हम कोऑर्डिनेट कर रहे हैं सर। और इसी के साथ ही गल्फ की जो पोर्ट अथॉरिटीज हैं, एमईए के थ्रू उनसे कोऑर्डिनेशन का कार्य चल रहा है। मिनिस्ट्री ऑफ और डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स की तरफ से एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन को हमने 3 महीने के लिए टिल अगस्त 31 उसको एक्सटेंड किया। और इस तरह से कार्य करते हुए सर हम फर्दर वॉर रिस्क एस्केलेशन से रिलेटेड इंश्योरेंस प्रीमियम पे कार्य, जिसके बारे में हम स्कीम के द्वारा भी सब लोगों को अवगत करेंगे सर। और मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम ने, जैसे कि सबको अवगत है, उनकी डेली ब्रीफिंग भी हो रही है। उन्होंने एक 24/7 इमरजेंसी सेल को एक्टिवेट किया है, डे टू डे बेसिस पर कोऑर्डिनेशन किया जा रहा है सर। और डीपीआईटी के द्वारा